موٹر وے M3 سمندری سے لاہور تک دھند کے باعث بند کر دی گئی۔ موٹر وے پر حد نگاہ 20 میٹر تک رہ گئی۔ موٹر وے پولیس کہتے ہیں شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ معلومات اور مدد کے لیے ہیلپ لائن 130 پر رابطہ کریں۔ فیصل آباد میں تعمیر و ترقی کی 1364 اسکیموں پر پیش رفت۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی کی زیر صدارت اجلاس۔ کہتے ہیں 17 ارب روپے سے اب تک مجموعی طور پر 87% کام مکمل ہو چکا ہے۔ ADC فائنانس عفیفہ شاجیہ، ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ طاہر محمود کے علاوہ PHA، واسا، FDA، کالجز، سوئی گیس، ہیلتھ بلڈنگز، روڈز، لوکل گورنمنٹ، پبلک ہیلتھ انجینئرنگ اور دیگر محکموں کے افسران بھی موجود تھے۔ سرکاری محکمے فیصل آبادیوں کو ریلیف فراہم کرنے میں ناکام۔ ٹاؤن کمیٹی فتح گڑھ لینڈ ریکارڈ سینٹر جھمرہ پر عوام کا اعتماد 0، کارپوریشن پر 22، تحصیل کونسل صدر پر 27، DO ماحولیات پر 34، ADC ریونیو پر 44، FDA پر 24، PHA پر 34۔ عوام نے ADCG پر 25، ADC ہیڈ کوارٹر پر 36% اعتماد کا اظہار کیا۔ سٹیزن پورٹل نے کارکردگی کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ ضلعی انتظامیہ کی رپورٹ کے مطابق 44,000 سے زائد شکایات کا ازالہ کر دیا گیا۔ فیصل آباد ایلائڈ اسپتال میں ماڈل آپریشن تھیٹر بنانے کا منصوبہ ٹھپ۔ حکومت پنجاب 39 کروڑ روپے کے فنڈز فراہم نہ کر سکی۔ ENT، آرتھوپیڈک اور امراض چشم کے ایمرجنسی آپریشن تھیٹرز کے فراہم کردہ 20 کروڑ روپے کے فنڈز بھی واپس لے لیے گئے۔ کورونا کے کاری وار 24 گھنٹوں کے دوران ڈویژن میں 6 اموات، 104 نئے کیسز رپورٹ۔ فیصل آباد میں 4 مریض جان کی بازی ہار گئے۔ 65 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ ٹوبہ میں 2 مریض جاں بحق، 10 کیسز کا اضافہ۔ شنیوٹ میں 20 اور جھنگ میں 9 افراد کی کورونا رپورٹ پازیٹیو آئی۔ بچوں کے ساتھ جرائم کی روک تھام کے لیے سخت قانون سازی کا فیصلہ۔ پنجاب حکومت کی ہدایت پر IG پنجاب نے 1 سال کے دوران جرائم کی تفصیلات طلب کر لی۔ کتنے مقدمات درج ہوئے، کتنے ملزمان کو سزائیں ہوئیں، کتنے بری ہوئے، ضلعی پولیس سربراہان کو بتانا ہوگا۔ ایکسپورٹ سیکٹر کے آرڈرز منسوخ ہونے کا ڈر مقامی صنعت کے لیے بھی پریشان کن۔ مہنگی بجلی اور را میٹیریل کے باعث قیمتیں بڑھ گئی۔ ایکسپورٹ آرڈرز منسوخ ہونا خطرناک ہے۔ کاروبار بند ہیں، مشینیں بیچ رہے ہیں۔ ہوزری ایسوسی ایشن فیصل آباد کی حکومت سے وعدے پورے کرنے کی اپیل۔ ہول سیل کلاتھ مارکیٹ کے کاٹن کی قیمت بڑھنے پر تحفظات، بہتر پالیسی کا مطالبہ کیا۔ یارن پر کسٹم ڈیوٹی ختم نہ ہونا ایکسپورٹ میں کمی کا سبب بن سکتا ہے۔ مشیر تجارت رزاق داؤد کے بیان پر فیصل آباد کے ایکسپورٹرز تحفظات کا شکار۔ حکومت کے کاسٹ آف ڈونگ اور ایز آف ڈونگ کی نفی قرار دے دیا۔ فیصل آباد میں سپریم انجمن تاجران کی جانب سے جلسے کا اہتمام۔ تجاوزات کے خلاف آپریشن کرنے پر انتظامیہ اور بڑھتی مہنگائی پر حکومت پر کڑی تنقید۔ جلسے میں شہر بھر سے تاجروں کی شرکت۔ تاجر کہتے ہیں اب دکانیں گرائی گئیں تو سڑکوں پر آ جائیں گے۔ چنیوٹ کے آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن کے عہدیداروں کا اجلاس۔ سرپرست ایپکا سمیت ضلعی اور تحصیل عہدیداران کی شرکت۔ ایپکا کے چارٹر اور ڈیمانڈ کی منظوری سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فیصل آباد میں جشن بہاراں شایان شان منانے کا عزم۔ پھول میلہ، کتاب میلہ، مزاحیہ مشاعرہ بھی پلان میں شامل۔ سرکاری اداروں نے پلان چاک آؤٹ کرنا شروع کر دیا۔ کورونا SOPs کا خیال رکھا جائے گا۔ کمشنر ثاقب منان کی زیر صدارت اجلاس۔ DG PHA عاصمہ اعجاز نے بریفنگ دی۔ فیصل آباد ضلع بھر میں مختلف محکموں اور اداروں کے حوالے سے پاکستان سٹیزن پورٹل پر شکایات کا اندراج جاری۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر محمد خالد نے سائلین کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کا حکم جاری کیا۔
टोबा में पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर मौसूल होने वाली शिकायत का अजाला करने के अहकाम जारी। डीसी उमर जावेद कहते हैं, अवाम को इंसाफ उनकी दहलीज पर पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। महकमा प्लानिंग और बिल्डिंग्स ने कमालिया में 4 गैर कानूनी इमारतें सील कर दी। इमारत तामीर करने से पहले म्यूनिसिपल कमेटी से नक्शा मंजूर कराना जरूरी है। प्लानिंग ऑफिसर उम्मे लैला का दराज मुकदमा का भी दिया। पंजाब के 80% भट्टे जदीद टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल हो गए। हुकूमती आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बड़ा दावा सामने आ गया। गिनती के भट्टे ही जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल हुए। बेशतर मोटरें लगाकर आंखों में धूल झोंक रहे हैं। मजदूर रहनुमाओं का बड़ा इंकशाफ। बोगस चेक देने पर पीपल्स पार्टी के साबिक एमएनए तारिक बाजवा के खिलाफ मुकदमा दर्ज। थाना पीपल्स कॉलोनी में मुकदमा मोहम्मद अमजद नामी शख्स ने 10 साल बाद दर्ज कराया। मुद्दई ने मौक़िफ़ अपनाया कि तारिक बाजवा ने कारोबारी सिलसिले में 80 लाख रुपए देना थे। 2 चेक दिए गए जो कैश नहीं हो सके। ऑन कैंपस इम्तिहानात नामंजूर। एजुकेशन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद कैंपस के तलबा एक बार फिर सड़कों पर आ गए। कॉलेज रोड समनाबाद ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। चिन्योट के मोहल्ला मशकी शाह में फातिमा पार्क मंसूबा खटाई में पड़ गया। साबिका दवार में डीएचक्यू अस्पताल और गर्ल्स डिग्री कॉलेज से मुलहिका जमीन को पार्क के लिए मुख्तस किया। मंसूबा पाया तकमील को ना पहुंचा। जगह पर नशइयों ने डेरे जमा लिए। जिला टोबा के मुख्तलिफ स्कूल्स साइंस लैब से महरूम निकले। लैब न होने की वजह से तलबा और तालिबात को प्रैक्टिकल्स करने में परेशानी। महकमा तालीम ने हुकूमत से 2 करोड़ रुपए के फंड्स मांग लिए। जंग में महकमा ज़राअत बायोलैब की जानिब से फसलात के कीड़ों की अफजाइश का अमल। जिला भर में काश्तकारों को दोस्त कीड़ों की फराहमी की जा रही है। लैब इंचार्ज डॉक्टर साइमा कहती हैं, दोस्त कीड़ों की फराहमी से स्प्रे के अखराजात बच सकते हैं। जंग में आटे के बहरान का खदशा। डिप्टी कमिश्नर ने सिटी 41 की खबर पर नोटिस ले लिया। डायरेक्टर फूड को गंदम का 403 टन का कोटा 70 टन मजीद बढ़ाने की सिफारिश। जिला में 576 सेल प्वाइंट बना दिए गए। प्रॉपर्टी के कारोबार में सरमाया लगाने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर। फॉरेन करेंसी अकाउंट से अदायगी करने वालों के लिए मुनाफे पर टैक्स की शरह 15 से कम करके 10% कर दी गई। मुस्लिम लीग नून का खवातीन वर्कर्स कन्वेंशन कोकियांवाला में तकरीब। साबिक मेयर चौधरी शेर अली ग्रुप की जानिब से खवातीन वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। साबिक मेयर चौधरी शेर अली, एमपीए मियां ताहिर जमील की खुसूसी शिरकत। साबिक एमपीए निगर सलीम, साबिक अपोजिशन लीडर शहराज काहलू समेत दीगर की शिरकत। यूरोपीय यूनियन सफीर एंड्रोला कामिनारा की फैसलाबाद आमद। ईवान सनत और तिजारत में कारोबारी शख्सियात से मुलाकात की। सीनियर नायब सदर चैम्बर चौधरी तलत महमूद, सीनियर वाइस चेयरमैन अब्यूमा, इंजीनियर बिलाल जमील, सदर रेक सिटी चौधरी गुलाम हुसैन और एग्जीक्यूटिव मेंबरात से मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया। यूरोपीय यूनियन सफीर का फैसलाबाद विमेन चैम्बर का दौरा। कहा, पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहां हुनर बहुत ज्यादा है। यूरोप में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट यहां से हो रही है। अप्रैल में यूरोप पाकिस्तान बिजनेस फोरम के कयाम का ऐलान किया। सदर वुमेन चैम्बर तहमीना पाशा, शाहिदा आफ्ताब, रोबीना शफीक, कुरतुल्लैन, एमपीए फिरदौस, शमा अहमद, डॉक्टर नजमा अफजल और दीगर की शिरकत। फैसलाबाद रोटरी क्लब लॉयलपुर जनरल बॉडी की मीटिंग। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर इंजीनियर हाफिज एहतशाम, साबिका सदर रगाव सिकंदर आजम, आरटीएन क्लब के सदर फारूक यूसुफ, रेक सिटी के सदर गुलाम अब्बास, मलिक मंजूर अहमद समेत दीगर ओहदेदारान की शिरकत। मुस्तहिक शख्स को रिक्शा भी दिया गया।
फैसलाबाद में पेस्को की जानिब से आज शहर के 12 फीडर्स पर मरम्मती काम होगा। मरम्मती काम के बायस मुनीराबाद, रशीदाबाद, गुलाम मोहम्मदाबाद, सिद्धपुरा, सईदाबाद, गुलशन हयात, सदर बाजार समेत दीगर इलाकों में 5 घंटे बिजली बंद रहेगी। मुतल्लिका इलाकों में बिजली सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगी। फैसलाबाद में मौसम गर्मा में सार्फिन तक बिजली की बिला तात्तुल फराहमी के लिए पेस्को की तैयारियां। गुलाम मोहम्मदाबाद डिवीजन को करोड़ों रुपए मालियत की नई गाड़ियां फराहम कर दी गईं, जबकि झंग पुलिस को 9 थानों के लिए नई और जदीद गाड़ियां फराहम कर दी गईं। डीपीओ सरफराज वर्क ने गाड़ियां एसएचओज के हवाले की, गाड़ियों की देखभाल और मौसर गश्त की हिदायत दी। टोबा पुलिस में भर्तियों का अमल मुकम्मल। आखिरी रोज बच जाने वाले उम्मीदवारों के 2 टेस्ट लिए गए। चेयरमैन सिलेक्शन बोर्ड अहमद अरसलान ने स्टाफ को सराहा, तारीफी असनाद से भी नवाजा। ट्रैफिक हादसात में कमी के लिए बैक व्यू मिरर का इस्तेमाल सूदमंद। सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद ने चनाब क्लब चौक में आगाही कैंप लगा लिया। सीटीओ शहजादा उमर ने मोटरसाइकिल सवारों में बैक व्यू मिरर तकसीम किए और अफादियत से आगाह किया। झंग शकरगंज मिल्स में स्क्रीनिंग कैंप लगाया गया। सदर लायंस क्लब प्लैटिनम और लायंस क्लब झंग ने कैंप का एहतमाम किया। वाइस प्रेसिडेंट परवेज अख्तर समेत दीगर क्लब ओहदेदारान की शिरकत। 1200 से ज्यादा मुलाजिमीन की स्क्रीनिंग की गई। निजी स्कूल की जानिब से मुस्तहिक बच्चों को तालीम दिलवाने के लिए चैरिटी डे मनाया गया। नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ वालिदैन ने भी मुस्तहिक बच्चों के लिए चैरिटी की। स्कूल प्रिंसिपल का कहना है साल में एक दिन चैरिटी के तौर पर मनाया जाता है। वजीर लिटरेसी राजा राशिद हफीज की फैसलाबाद आमद डिजकोट में इल्म व हुनर प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। एडिशनल सेक्रेटरी बशीर जाहिद गोराया, सीयू एजुकेशन अली अहमद सयान, डीओ लिटरेसी नवीदुल हक और दीगर भी मौजूद थे। कहते हैं अब बच्चों को तालीम के साथ साथ मुख्तलिफ महारतें भी सिखाएंगे। प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन टोबा की गोशा में तकरीब हल्फ बर्दारी। जावेद इकबाल चीमा, सदर इरफान जफर, जनरल सेक्रेटरी मुंतखब, दीगर ओहदेदारों ने भी हल्फ लिया। एमपीए बिलाल अस्कर वड़ाइच, असिस्टेंट कमिश्नर सुमेरा अमरीन, ताजिर, वकला और असातिज़ा की शिरकत। फैसलाबाद के डी ग्राउंड चौक को डीआरटी की जानिब से सजा दिया गया। खूबसूरत चौक को शहरियों की तवज्जो शहर की खूबसूरती के लिए सजाया गया। शहरियों की बड़ी तादाद सेल्फी लेती दिखाई दी। डियर चाय की काविशों को भी सराहा गया। फैसलाबाद में जनरल सेक्रेटरी पंजाब थ्रोबॉल एसोसिएशन सज्जाद अकबर की सालगिरह। सज्जाद अकबर 40 बरस के हो गए। दोस्त अहबाब और खेलों से वाबस्ता अफराद की मुबारकबादें। अजीजों अकारिब की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार। फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग के मुकाबले के लिए तैयारियां जारी। आज भट्टी जिम में खिलाड़ियों का वजन और फिटनेस चेक की जाएगी। राय हबीब भट्टी कहते हैं मौसीकी का तड़का भी लगेगा। खिलाड़ियों के लिए 10 लाख के कैश इनामात होंगे। इंटर पाकिस्तान क्रिकेट लीग लाहौर में शुरू। फैसलाबाद की शार्क्स क्रिकेट टीम भी इवेंट में हिस्सा लेने को तैयार। स्टेज आर्टिस्ट कैसर की जानिब से सबीना थिएटर में खिलाड़ियों को किट्स देने की तकरीब। इकबाल स्टेडियम में ऑल पाकिस्तान चौधरी तनवीर रहमान रंधावा क्रिकेट टूर्नामेंट मैच। फैसलाबाद वकला 11 ने समंदरी 11 को 3 विकेटों से हरा दिया। आज सिंध और फैसलाबाद की टीमों का मुकाबला होगा। टोबा में चक नंबर 347 में राहील सईद शहीद एंड वली मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट टोबा और पीर महल की फुटबॉल टीमों के माबैन मैच खेला गया। टूर्नामेंट में टोबा ने 1-0 के मुकाबले से मैच जीत लिया। इंटर डिस्ट्रिक्ट T20 क्रिकेट चैंपियनशिप के लीग मैचेस। यूसुफ मेमोरियल और मिल्लत स्टार की टीमें मद्दे मुकाबिल। यूसुफ मेमोरियल ने मिल्लत स्टार क्रिकेट क्लब को 68 रन से शिकस्त दे दी।
اور فیصل آباد سپورٹس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے انٹر کلب ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں لڑکیوں کی ریس، ویمن ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں ڈویژنل سپورٹس آفیسر رانا حماد اقبال کی شرکت، جیتنے والی لڑکیوں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔